जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पर सुनाए जाते हैं गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग जो गुरु जी की संगत द्वारा हमें भेजे जाते हैं। अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है और आप भी अपना सत्संग पूरे संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो लिखकर या ऑडियो फाइल के रूप में आप हमें अपना शुक्राना सत्संग भेज सकते हैं। आपका शुक्राना सत्संग पूरे संगत परिवार के साथ ज़रूर साझा किया जाएगा। संगत जी, आज के शुक्राना सत्संग बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्लेसिंग भरे सत्संग है। कृपा करके सत्संग को पूरा सुनिएगा, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा ताकि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स भी आप तक पूरी पहुँचे। शुक्राना सत्संग साझा करने से पहले हम सब मिलकर गुरुजी महाराज का मंत्र जाप एक साथ करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं आज के शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गाजियाबाद से। गुरुजी ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਛ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਕੰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾफ़ੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਨ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਨ ਸਭ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਰਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਿਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਕੰਜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਬੜਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਨਿਆ ਘਰ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੰਜਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਘਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਟ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੂਟ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਲੈ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਘੱਟ ਪਏ ਰਹਿਣ। ਇੰਨੇ ਸੂਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸੂਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਲ ਭਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਸੂਟ ਹੀ ਸੂਟ, ਸੂਟ ਹੀ ਸੂਟ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀਆਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣਾ, ਮਾफ़ੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਦੇਣਾ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾफ़ੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਏ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਘਰ, ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਦਰਦ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਟੰਗਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, 777, 777, ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਥੱਕ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ, ਇਸ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਇਲਾਜ ਜੋਗਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾफ़ी दे दो और ठीक कर दो गुरु जी बच्चा है वो समझदा नहीं है, कभी कुछ बोल देंदा है। गुरु जी आप जी का दोतरा है, उन्होंने माफ़ कर देना अनजान बच्चे समझ के, आप ही जी का बच्चा है। इस करके गुरु जी माफ़ी बख्शना, अगर गलतियाँ हो जांदियां ने, बड़ियां हो जांदियां ने, मैनू पता है, लेकिन आप जी दे बच्चे आ गुरु जी। जिन्ना शुकराना करिए तुहाडा उन्ना घट है। हर अरदास सुनदे हो, हर अरदास जिहड़ी है तुहाडे तक पहुँचती पई है गुरु जी। सब कुछ आप जी ने करना है। आप जी कह रहे हो बड़े अच्छे दिन आने वाले ने मेरे, ते मेरे तो पहले तो गुरु जी आप जी ने पता लगना है, क्योंकि आप जी ने ही अच्छे दिन देने ने। तो उहदे वास्ते बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। आप जी दी धी ऐश करेगी हुण, वैसे तुसीं ऐश करा रहे हो अपनी धी नूं, बहुत पहले नालों फ़र्क है गुरु जी। लेकिन गुरु जी जिहड़े है काम करते ने काली किरिया ते ये वो, तुसीं पता है गुरु जी। गुरु जी उन सारिਆਂ ਨੂੰ रोको। ਹੁਣ शरीर इन्ना मेरा चलदा नहीं गुरु जी कि मैं इन चीज़ां नूं झेलां अपने उत्ते, जद कि मैं तो 10% झेल रही हाँ, 90% तो तुसीं झेल रहे हो, लेकिन तुहाडी धी तो 10 भी नहीं झेलिया जा रहा गुरु जी। ख़त्म करा दो गुरु जी इन सारियां चीज़ां नूं। मैं बुरा किसी दा नहीं मंगदी, अंदर कदी परेशान होनी हाँ तो कुछ निकल जाता मूँह तो, उहदे वास्ते माफ़ी मंगना गुरु जी। आप जी बैठे हो करन वालियां नूं भी देखण वाले ते हर चीज़ देखण वाले गुरु जी। भला मंगनी आ परिवार दा, हमेशा परिवार दे सिर ते मेर भरे हाथ बनाए रखना अपना। जिहड़ियां भी गलतियां होन उहदी माफ़ी बख्शना। सब कुछ देने लई बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। परिवार आप जी दा दिता है, सुख सारे आप जी दे दिते ने, कमाइयां सारी आप जी दी दित्तियां ने, सब कुछ आप जी दा दिता है गुरु जी। बनाए रखना गुरु जी। बड़ियां सारियां चीज़ां दिल विच हैगियां ने जिहड़ियां आप जी नूं पता ने, जिहड़ियां नहीं बोल के दस सकदी गुरु जी, वो भी आप जी नूं पता ने। बड़ी सारी गलतियां भी ने, वो भी आप जी नूं पता ने। उहदी माफ़ी बख्शना। जिहड़ी दिल विच अरदासां ने उन्हां नूं पूरीआं करना गुरु जी। परिवार हसदा खेडदा रहे, खुशियां नाल जुड़िया रहे, परिवार एक दूजे नाल प्यार करे, एक दूजे दी इज्जत करे, होर कुछ नहीं चाहिदा गुरु जी। बड़ी गलतियां कर दिनियां। तुसीं कहा सी तू किसी नाल गल ना करिया कर, क्योंकि फिर गल पूरी नहीं होंदी। गुरु जी मेरे मूँह चों निकल जाती है गल, मैनू माफ़ करना। मैं किसी नूं कोई दिखावे वास्ते कोई गल नहीं करती, बस गुरु जी आप जी नूं पता है आप जी दे बच्चे दे दिल विच गल नहीं रहिंदी, वो निकल जाती है गुरु जी। लेकिन इस चीज़ तो कि पूरी ना होए, एवें ना होण देना गुरु जी। आप जी ने सारियां पूरियां कराइयां ने, छत दित्ती है, सुख दिता है, सब कुछ दिता है गुरु जी। अगे भी आप जी ने पूरियां करानियां ने, सारियां चीज़ां पूरियां कराना गुरु जी। परिवार नूं जोड़े रखना गुरु जी, अपने चरणों नाल लाए रखना। जल्दी जल्दी खुशियां नाल वड्डे मंदिर बुलाना फिर तो। आप जी नूं दी धी नूं ठीक कर दो, उहदी कमर दर्द सही कर दो, उहदे पैरां 'च जिहड़ा दर्द है सही कर दो गुरु जी। मैनूं नई दवाइयां लग रही बहुतियां, उहदे पिछे भी आप जी नूं पता है कि की रीज़न है। आप जी ने ठीक करना है गुरु जी। उत्थे तक तो मैं नहीं पहुँच सकती, डॉक्टरां तक मैं पहुँच सकनी हाँ, लेकिन जिहड़ियां होर बाकियां चीज़ां ने उत्थे तक मैं नहीं पहुँच सकती, वो आप जी नूं पता है गुरु जी। आप जी ने ठीक करनियां ने, आप जी ठीक करना गुरु जी। और अपनी धी दे सिर ते मेरे भरे हाथ बनाए रखना। तुसीं हमेशा मेरे नाल हो, मैनूं पता लगदा है गुरु जी, हमेशा मेरे नाल हो और हमेशा ही मेरे नाल रहना गुरु जी। मेरे परिवार दे नाल रहना। तुहानूं पता है कि बड़े ही इहो ਜਿਹੇ लोगों के विच हैगे आ गुरु जी, जिहड़ा हर वेले साडा बुरा करना चाहते हैं। बाकी तुसीं देखना उन्हां नूं, जो बनदा होए उन्हां वास्ते वो करना गुरु जी। लेकिन अपनी धी नूं एवें ही अपने चरणों नाल रखना और उहदे परिवार नूं सब कुछ आप जी दा दिता बनाए रखना गुरु जी। मेरे भरे हाथ रखना परिवार दे सिर ते। बड़ियां गलतियां हो जांदियां ने, माफ़ी बख्शना गुरु जी। शुकराना करदे भी मेरे को बड़ियां गलतियां इहो जिहियां हो गई होंगियां, उहदी भी मैनूं माफ़ी बख्शना। जिहड़े आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करदे ने उन्हां दे परिवार ते भी मेरे भरे हाथ रखना गुरु जी, और सारी संगत दे सिर ते मेरे भरे हाथ रखना। सब जी आप जी दे सहारे आ गुरु जी, आप अपना सहारा बनाए रखना सारिਆਂ दे सिर ते। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने, सरबत दा भला, सरबत दा भला गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी बोल रही हूँ। मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती।
संगत जी, मैं आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ और ये वो बात है, मतलब आप जिसकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं कर सकते हैं। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी, सत्संग कहते हुए मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था कई दिन से, तू अपनी अलमारी चेक कर, अलमारी में सिंदूर है। तेरी अलमारी में सिंदूर पड़ा है जिससे तेरे पति पर वशीकरण किया हुआ है। संगत जी, मैंने अपनी अलमारी वगैरह सब चेक करी, मेरे को अलमारी में अपनी में नहीं दिखा। पर संगत जी, मेरे को उसके 3-4 दिन बाद ही ड्रेसिंग टेबल पर जब मैं ड्रेसिंग टेबल वाली मेरी अलमारी है, अलमारी के अंदर ही मिरर लगा हुआ है संगत जी, कवर्ड मिरर में है। तो मैं जैसे कंघी करी थी, मुझे अचानक से जो मेरे हस्बैंड का आफ्टर शेव और ये हेयर जेल वगैरह है, उसके पीछे मुझे रेड रेड सा कुछ दिखा। संगत जी, मैंने चेक किया, रियली वहाँ पर जो हम लोग मांग में सिंदूर भरते हैं वो वाली एक बॉटल रखी थी। संगत जी, मैंने उसे तुरंत निकाला, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता रहा, तेरे घर में कहीं सिंदूर पड़ा है, तेरे घर में सिंदूर पड़ा है। संगत जी, मैंने बहुत चेक किया, मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने फिर गुरुजी को कहा फाइनली, गुरुजी आप ये सिंदूर ढूंढवाओ कि कहाँ रखा हुआ है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने मुझे बुद्धि दी। जैसे संगत जी, हम सभी के घरों में लॉक्स और कुंडियाँ लगी होती हैं, तो संगत जी, जो ये लोग गंदी क्रियाएं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, वो मेरे पीछे से मेरी एब्सेंस में आके हमारे दरवाजे की जो छेद होता है संगत जी, जिसके अंदर कुंडी का डंडा अंदर जाता है, उस छेद में सिंदूर पड़ा हुआ था संगत जी। मैंने देखा, हाथ ऐसे ही डाल के मुझे ऑरेंज ऑरेंज लगा। संगत जी, मैंने फिर गीला कपड़ा लेके उसको उँगली में लपेट के डाला तो काफ़ी सारा सिंदूर उस कपड़े पर लिपट कर आ गया। संगत जी, मैंने इसी तरह अपने घर के सभी दरवाज़ों की कुंडियाँ वगैरह चेक की, तो मुझे 5 अप्रॉक्सिमेटली 5 छेदों के अंदर मुझे सिंदूर पड़ा हुआ मिला, जिसे मैंने निकाला। उसके बाद संगत जी, जो दरवाज़ों के लॉक थे, उनके किनारों में भी ऑरेंज-ऑरेंज मिला, जिससे मैंने कपड़ा गीला करके नुकीला चाकू लेके उसको उस गोल-गोल घेरे में, लॉक के घेरे में घुमाया, तब मैंने वो सिंदूर निकाला। संगत जी, जब मैंने निकाल दिया, उसके बाद गुरुजी का मैसेज आना बंद हो गया कि तेरे घर में सिंदूर है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वो सिंदूर निकलने के बाद से मेरे पति के व्यवहार में बहुत चेंज आया और जिन शत्रुओं को वो डेली फ़ोन करते थे, उन्होंने उन्हें डेली फ़ोन करना और बहुत ज़्यादा पीछे पड़ के उनके काम करवाना, वो सब बंद कर दिया संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पास शब्द नहीं है कि आपने मुझे आपका शुक्राना करने के लिए कि आपने मुझे इतनी बुद्धि दी कि क्या कुंडी के छेद में भी कोई सिंदूर रख सकता है? देखिए, ड्रेसिंग टेबल की अलमारी में निकलना तो मैं मान सकती हूँ, वो एक नॉर्मल बात है कि कोई आफ्टर शेव की बॉटल के पीछे छुपा गया या कुछ है, और संगत जी, वो उस टाइप का सिंदूर था, सूखा सिंदूर, जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। वो मेरी बॉटल नहीं थी, क्योंकि मैं स्टिक वाला सिंदूर यूज़ करती हूँ, तो नेचुरल है, वो रखा गया था। उसके बाद भी गुरुजी मुझे मैसेज देते गए और उन्होंने ही मुझे बुद्धि दी कि तू कुंडियों के छेद को चेक कर, लॉक के छेद को चेक कर अलमारियों के। और संगत जी, इवन मेरी जो क्रॉकरी की अलमीरा थी, उसके छेद में भी सिंदूर पड़ा मिला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए। संगत जी, आप लोग भी को भी मैं ये हिंट दे रही हूँ आगे के लिए कि जो लोग गंदी क्रियाएँ करते हैं, वो ऐसी जगहों पर भी रख सकते हैं। तो प्लीज़ आप अलर्ट रहिए, और गुरुजी किसी को मैसेज दे रहे हैं तो इन जगहों पर भी आप चेक कीजिए प्लीज़। संगत जी, इसके साथ ही मैं सत्संग को विराम देती हूँ और अगला सत्संग लेके जल्द ही आऊँगी। मुझसे सत्संग कहते हुए कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुजी, संगत जी, मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
आज ये मेरा संध्या बेला शुक्राना सत्संग है। ये मेरे भाई से रिगार्डिंग सत्संग है। जैसे कि मैंने पहले सत्संग में शेयर की हूँ, उसके हाथ के फ्रैक्चर हुए थे 1 ईयर पहले। अभी फिर लास्ट ईयर सेम टाइम पे उसको वही प्लेस में, उसी हाथ में स्कूल में खेलते वक़्त फ्रैक्चर हुए। तो गुरुजी के मैसेज भी मिले थे कि बेटे पर कष्ट है। तो मैंने सत्संग सुने, फिर छोटे में ही कष्ट काट दिया गुरुपा ने, शायद कोई बड़े ही अनहोनी होने वाली थी, क्योंकि मैसेज तो रिपीट में ही आ रहे थे कि बेटे पर कष्ट है, सत्संग सुन कष्ट कटवा। तो ऐसे तो वो हुआ। तो गुरुपा बेटे पर कष्ट है, मेरे सत्संग सुने, फिर छोटे में ही कष्ट काट दिया, तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो उसके चलते उसके 1 मंथ के लिए स्कूल भी जाना नहीं हुआ। एनुअल भी पास में थे, स्कूल एब्सेंट हुआ, प्लास्टर के चलते, डेट टू राइट हैंड पे प्लास्टर थे। उसके बाद उसके साथ-साथ मैं नाम नहीं लूँगी, पर गुरुजी ने फेस दिखाया है ड्रीम पर। तो घर पे आए थे कोई, मेरे भाई को खिलाया उसी इंटरवल में, 10-15 दिन के इंटरवल में फ्रैक्चर होने के बाद। तो उसकी ब्लीडिंग वाले वोमिटिंग कंटिन्यू चालू थे। उसके पहले वो बच्चा एकदम फिट एंड फाइन था। हम पूरे परिवार एकदम सोच में पड़ गए कि एकदम से ऐसा क्या, उस वो तो बाहर का भी ऐसा कुछ खाता नहीं है, घर का ही खाना खा रहा है, हेल्दी खाना वो भी। तो एकदम से हम तो पूरा मतलब डर गए। तो उसके बाद डॉक्टर के पास भी गए, तो एक डॉक्टर के पास गए, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी था वो सब सही आया, कोई नॉर्मल है रिपोर्ट। तो 15 दिन के बाद फिर भी कोई ख़ास रिकवरी नहीं हुए। तो 15 दिन बाद फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, शायद दूसरे मेडिसिन खाने से ठीक होगा। मतलब ऐसा हो रहा था कि जब तक वो मेडिसिन खा रहा है तो ठीक है, तो वो अंदर से पूरा ठीक नहीं हो रहा था। तो रिपोर्ट भी एकदम नॉर्मल था। दूसरे डॉक्टर के पास गए, तब भी पूरा नॉर्मल था। तो फिर मैं गुरुजी का मंत्र जाप रेगुलर ही कर रही थी, और मैं एकदम रास्ते में भी कर रही थी, डॉक्टर के पास भी जब थे, मतलब कुछ ऐसा, मतलब बड़ा कुछ। अब ब्लीडिंग वाले वोमिटिंग तो आप समझ ही रहे हैं ना संगत जी, कितना टेंशन वाली बात है। तो भगवान के आशीर्वाद से, गुरुजी के आशीर्वाद से रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आए, तो ठीक हुआ। फिर उसी वक़्त गुरुजी ने सत्संग भी सुनवाए थे कि वो औरत फिर से तेरे घर आई थी ब्लैक मैजिक करने। तो मेरे माइंड में एकदम सा क्लिक यही बात हुआ, तो ये तो एकदम सही है कि थोड़े टाइम पहले तो वो आए थे। तो उस टाइम पे भी भाई का स्कूल एब्सेंट हुआ, पूरा तबीयत खराब था बेचारा, एकदम वॉमिटिंग, लूज़ मोशन, बेचारा फिर भी एग्ज़ाम तो अब देना ही था एनुअल, तो अच्छे से तो दे नहीं पाया था, पूरे टेंशन ही ले रही थी मैं भी कि। तो फिर गुरुजी का मैसेज आया, "पुत्र तेरा मुंडा पास हो जाएगा, टेंशन ना ले, मैं साथ जाता हूँ पेपर दिलवाने उसके।" तो ऐसे और बहुत सारे टेलीपैथी गुरुजी ने दिए उसके लिए। शुक्राना गुरुजी, आज वो अच्छे नंबर से पास भी हो गया है। 25 मार्च को उसका रिजल्ट आउट हुआ, जो कि है 2+5 7। देखिए गुरुजी के ब्लेसिंग किस तरह से मिले हैं मुझे। फिर द ब्लेसिंग, उसके रोल नंबर भी 7। फिर कोइंसिडेंस देखिए, मेरा सत्संग शेयर करने में भी डिले हुआ, पर आज भी है 7 अप्रैल। तो मैं मतलब इतनी खुश हूँ, 777 की ब्लेसिंग मिल गई है, तो मेरे तो खुशी के ठिकाने ही नहीं थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सत्संग करने के में थोड़ी देर हुई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। और सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी को भी बहुत-बहुत शुक्रिया, आपको भी। और मैं यही विराम करती हूँ सत्संग का गुरुजी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।